block-to-book experiment, an ode to Faisal Khan's role as Kunwarji in Sony Television's teleseries Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap. In all probabilities, Faisal Khan is the youngest Indian actor on whose role a book. First time. Let's ask the author when and how did this magic begin? Round of applause for the author. Good evening. Thank you so much. On a Saturday evening, you are here. And we are here to share why this book was made. And unless and until I share the real part, the complete story will not be there. I'm sure even Faisal is wondering why somebody would write something so much for me. Okay, yes, Faisal, you have thought like that, right? But what am I going to say is something you have to take it in a very positive way. There are many young teenagers are over here, and I'm sure your parents fire you for being a Faisal fan. Yes, I know that. Because I have had phone calls and all that telling आपका husband आपको घर से बाहर नहीं निकाल देता. Okay, thank you Nozo for not doing that. Coming to the book, this whole story began on 29th May 2014. I was a fan of Faisal. I was watching the serial. I was quite hooked to it. बहुत अच्छा लगता था. But in the month of May, I was going through a lot of crisis. My husband and children are very good. They don't give me any crisis. But there was personal rejection from my parents and I was very depressed. And on 29th May, I decided suicide kar lete hain. Let me die. So afternoon time, and I'm thinking as soon as my husband and children go out, पंखे पे लटक जाते हैं. Okay. But just the evening before, I had spoken to Shahin that the shows are so good and I want to see them again. So he's like, Mommy ne farman choda hai, matlab I have to do it. So he opened the YouTube at that very moment before leaving the house. He was like, Mommy आपको देखना है, आप देखो. And I was like, ठीक है, 1-2 मिनट में तो खत्म ही करना है, रखने दो टीवी, चलने दो. So he started the YouTube. And the month of May had lovely episodes. So I started seeing them. And I saw one episode. I saw the second one. And then I thought, ye hai to Sakhaveer bhi hoga. So I went back and I started watching the other serial. And another episode, another episode, another episode. And 3 hours, 4 hours, they came back. And actually what I realized was that I forgot to die. मरना ही भूल गए. So it was like इतना deep connection. So that day तो till रात को 4 o'clock तक I watched all his episodes. And I'm a writer, basic blogger. So I said if the connection is so deep, I have to write. So I started writing. One blog I wrote, I put it up on his fan pages and it was received so well. And suddenly I had so many friends. People from Indonesia, America, England started interacting. आप जो लिखते हो हमको भी फैजल को यही बोलना है जो आप लिखते हो. And then another one, and somewhere the whole depression that I was going through totally just disappeared. So what I would say is that people, this is jokingly I tell my friends, कि लोग कहते हैं हम फैजल पे मरते हैं. I say हम फैजल की वजह से मरना भूल गए. Yes, फैजल. So Fan for the first time basically came up like that. On 29th May 2014, I started writing on him. And then I wrote 11 blogs. People started asking for it. So one fine day when I finished the blogs, my husband saw them. And he was like, it's good. तब तक तो उन्होंने भी नहीं पढ़े थे. So he was the one to go ahead and make a book out of it. And then next steps just kept happening. Like we went to Mr. Abhimanyu, and he fixed a meeting with Faisal, and rest is history. Book is out, people love it. There are so many people, yes, we love it. Yes. So that's the small story. What I want to tell you is, let's look at the positive side of it. Normally people blame TV, people blame the real life, but real life can have positive effect if you were to use it correctly. So thank you Faisal. If I'm alive because of you. Yes? ये
मुझे स्टोरी के पीछे क्यों लिखा था इन्होंने ये बुक, मुझे अब तक इन्होंने नहीं बताया, पर आज शायद आप कल बता देती तो मैं यहाँ पर थैंक यू। पता नहीं, मैं बहुत दिन से कह रहा था कि आपने ये सोचा क्यों, आपने इतना काफ़ी टाइम लगेगा इतनी बड़ी बुक को बनाने के लिए, तो इतना टाइम मेरे लिए लिया, तो बस रीज़न जानना चाहता था और आपने कल तक नहीं बताया मुझे। काफ़ी थैंक यू सो मच, सच में। हाँ, हम लोग ने कल डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक ठीक ठीक। Thank you the author for sharing a journey. Now moving on to Faisal. अभी आपकी सबसे बड़ी फैन आपके साथ बैठी है, तो मुझे जानना है कि आप सबसे पहले फैन फॉर द फर्स्ट टाइम आप किसके बने? आप फैन फॉर द फर्स्ट टाइम किसके बने? आप किसके फैन? अच्छा, ऐसे बोला जाए तो मैं इन्हीं का बन गया क्योंकि इतनी बड़ी बुक बना दी इन्होंने। वैसे मैं सभी को फॉलो करता हूँ, जैसे हर हीरो को, क्योंकि हर हीरो में एक अलग अलग क्वालिटीज़ है। तो इन्होंने बुक बनाई, लेकिन आज इतने दिन से मैं सोच रहा था सच में कि ये बुक कैसी होगी, क्या होगी, मैंने अब तक पढ़ी नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं स्टार्टिंग के मतलब अभी बोर्ड एग्जाम्स दिए तो अभी 2-3 बचे थे, उसमें मैंने थोड़ा पढ़ा, तो मैं शायद आपका फैन बन गया अभी ये बात सुनकर। It's not every day that someone writes a book on a teleseries. So फैजल, हमें बताइए कि आपके ऊपर बुक लिखी गई है, इसके बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला? मुझे सोनल जी का कॉल आ रहा था कंटिन्यूस कि मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, आपको गिफ्ट देना है। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, वो न्यूज़पेपर का कटआउट लिया होगा, फिर उस पर लिखा होगा, लेकिन वो भी बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि एक बार देखते, क्योंकि इतना फोर्स कर रहे। फिर हमारे जो शो के प्रोड्यूसर हैं अभिमन्यु जी, उनके थ्रू मीटिंग फिक्स हुई और फर्स्ट डे हम मिले और वहाँ पर इन्होंने मुझे बुक दी। तब मैंने देखा कि ये बुक में कुछ बात है, क्योंकि ये ऐसी बुक नहीं है, रीडिंग करना मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैंने ये बुक ली। वो बात अलग है कि मैंने अब तक रीडिंग इसको शुरुआत नहीं की, लेकिन फर्स्ट डे हम जब मिले थे तभी मैंने देखा, आप भी आए थे वहाँ पर, हुजर जी भी, इनके हस्बैंड, उनका छोटा बेबी भी, तो अच्छा लगा फर्स्ट डे बुक देख कर, हाथ में इतनी अच्छी बुक मेरे लिए लिखी गई है। फर्स्ट डे ऐसे ही कुछ मिलेगा। थैंक यू फैजल। और आपको पता चला कि आपके ऊपर बुक लिखी गई है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मतलब आपको क्या फीलिंग हुआ जब आपको पता चला कि बुक लिखी गई है आपके रोल पे? मुझे पहली बात तो अच्छा लगा कि किसी ने बुक लिखी और वो भी इतनी अच्छी कि इसके पेजेस देखो आप। फर्स्ट टाइम जब बुक हाथ में आई, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लग रहा था कि वो कट आउट होगा, लेकिन जब बुक मिली तो बहुत ही अच्छा लगा कि इतना मेहनत करने के बाद इनकी मेहनत इसमें दिखी मुझे। बहुत अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम बुक। फिर आपकी बुक, जैसे यहाँ आपके फैंस बैठे, इन्होंने सेल्फीज लगाने शुरू किए आपके ये फैन फॉर द फर्स्ट टाइम बुक के साथ, और इंडिया में नहीं ओवरसीज भी लोग खरीद रहे थे ये बुक, और मतलब बुक ने सोशल मीडिया पे धूम मचा दी। तो मतलब ऐसे जब भी सेल्फीज आ रहे थे तभी आपको कैसा फील हो रहा था? ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुक जिसने भी खरीदी है वो सेल्फी ले उसके साथ और अपलोड करे, और मैं भी उसे अपलोड कर रहा था, उनके सेल्फी लगा था। तो ये आइडिया किसका था मुझे पता नहीं, लेकिन आप ही का था, क्या बात है। तो ये बुक इंडिया के अलावा बाहर भी लोग खरीद रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे खुद को प्राउड फील हो रहा है, मेरी फैमिली को, मेरे गुरुजी श्रीकांत सर, क्योंकि इनके ही बदौलत मैं हूँ यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि बुक आउट ऑफ इंडिया भी बिक रही है, और इसका कॉस्ट ज़्यादा है तो भी खरीद रहे लोग, तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। और मतलब आपके फैंस को पता चल गया कि आपके रोल पे बुक लिखी गई है, पर आपने भी लोगों को कहा होगा कि मेरे ऊपर बुक लिखी गई है आपके रोल पे, तो आपको ऐसा कोई फनी रिएक्शन मिला हो या कोई ऐसा कोई किस्सा सुना है जो आपको फनी लगा हो जब आपने किसी को कहा कि आपके रोल पे बुक लिखी गई है?
ऐसा कोई मतलब हंसी मजाक का सीन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको कहा कि उन्होंने कहा कि वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, किसने लिखी है, तो मैंने उनका नाम बता। ऐसा कुछ फन नहीं हुआ इसके ऊपर कि बुक बनी है तो क्या यार तेरे ऊपर बुक बनी है, वैसा नहीं। सबने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, हमें भी पता कहाँ पर मिल गई। मुझे पहले नहीं पूछा था कोई बुक पढ़ेगा मेरे ऊपर। That was the funniest thing anybody could ask an author, उसका बुक पढ़ा है सामने and he's like ये कोई पढ़ेगा मेरे ऊपर। So Faisal, I think you got your answer. Yes, people are reading it and there are so many people who want to tell you that how good it is and how nice it is. They have actually taken time out to come and meet you. हाँ, मुझे एक और किस्सा भी था कि somebody said कि आप इसको black and white बना दो तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, फिर हमारे जैसे लोग उसको खरीद सकेंगे। बट आई डोंट नो, ब्लैक एंड वाइट में उसका पूरा मैजिक चला रहा था। बट दैट चाइल्ड वाज सो क्यूट, ही केम विद अ चैट मैसेंजर, मैडम आई एम नॉट एबल टू, आप ब्लैक एंड वाइट कर दो बुक को। उसका ना ग्लॉसी पेपर फैजल को दे दिया है आपने, अभी आप उसको ना नॉर्मल कवर बना दो। सो ही इज गिविंग मी द होल लेआउट ऑफ द होल प्रिंटिंग कि आप ये बुक को पूरा कैसे बदल सकते हो सो दैट ओके। बट ही वाज सो क्यूट, ध्रुव सिंह ने। Or Faisal, what message you have for your fans with regards to the book? खरीदो। इसे मैंने तो नहीं पढ़ी है, मैंने स्टार्टिंग की पढ़ी। आई एम सो सॉरी, फिर से सॉरी बोलना चाहूँ क्योंकि अब तक स्टार्ट, हाँ वो मैंने थोड़े आगे के 10 पेज पढ़े हैं शायद। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बुक अगर आपको अच्छी लगी हो तो ख़रीदें। अगर इससे कुछ सीखने मिल रहा है, पता नहीं हमारा पता अपने 1.5 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला, तो इससे कुछ सीखने शायद मिलेगा। आपने बहुत अच्छे ब्लॉग से ये बुक बनाई है, तो खरीदो इसे और पूरे वर्ल्ड में फैला दीजिए। Miss, what message do you have for the fans with regards to your book? As the book says, fan for the first time. This is for all the teenagers sitting here. जब हम बड़े हो रहे थे तो I used to see this कि my friends and all that used to अपने stars को ऐसा blood से letter लिखते थे and lot of things they used to do which I was like क्या कर रहे। So what I want to say to all the fans whoever are listening to this कि जब fan बनो तो ऐसे बनो कि अपने star को खुशी दो, वो आपके साथ associate हो तो उसे proud feel हो। ऐसे फैन मत बनो कि आपके स्टार के लिए आप एक डिस्कम्फर्ट बन जाओ। डोंट बिकम अ फैन वेयर यू गो एंड ट्रबल योर फैन कि उनके घर पे जाके दस्तक दे दिया आपने या उनके बार बार उनको फ़ोन कर दिया। व्हाट हैपेंस इज दैट स्टार्स आर स्टार्स मीन्स दे आर फॉर एवरीबडी, सो इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू हैरेस देम। सो बी अ फैन इन सच अ वे कि वो आपको देख के खुश हो। या Thank you. In every person's life, parents, family. बहुत पहले की बात है, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब से मुझे डांस क्लासेस में जाने का बहुत मन था। तो आसपास कोई डांस क्लास ज़्यादा नहीं थी जिनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सर की डांस क्लास के बाहर वहीं विंडो से देखता था कि डांस सीख रहे, और फिर सोचा कि डांस क्लासेस ज्वाइन कर दूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो सपना मेरा धीरे 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 7th स्टैंडर्ड में फाइनली आके वो एक डिसीजन ले लिया कि हाँ फैजल को डांस क्लास जाने का। अब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतनी फीस थी, 7th स्टैंडर्ड में और ज़्यादा हुई, तो अब क्या करें समझ नहीं आ रहा था। तो सर ने फीस कम की और मुझे डांस सिखाया। मैं मतलब बहुत फैज़ल मतलब अभी तो नाम ऐसा हो गया है कि हर एक के दिल में है, उसके जो फैंस हैं। वो नाम बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की है इतने सालों से। आज मेरे साथ शायद ये 8 साल से होगा। तब से मुझे पता नहीं था कि इनकी मौसी लेके आई थी ज़ैबा करके मेरे पास। तो उस टाइम सारे मेरे लिए तो देखो मैं क्लास करता हूँ, मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। बट कुछ टाइम के बाद हर एक बच्चे में एक स्पार्क होता है। जैसे इसने रिहर्सल करता था तो रिहर्सल का कुछ टाइम लिमिट्स रहता है, बट इसके लिए
बड़ों की कोरियोग्राफी जैसे कुछ 18 या 15 या 22 इयर्स के या बच्चों के, सारी कोरियोग्राफी ये अकेला सीख के रखता था। जबकि मैं किसी बड़े बंदे को बोलता था कि आपको बच्चों का कोरियोग्राफी, मुझे नहीं पता सर। तो फैज़ल ऐसा था कि उसको छोटे बच्चों से, 5 साल के बच्चों से लेके 22 साल के बड़े लोगों की सारी कोरियोग्राफी याद रहती थी, और सारी कोरियोग्राफी में डांस भी वो उनसे बेहतर करता था। इस तरह हमेशा मेरे क्लास में फैज़ल मेरा 1 नंबर का स्टूडेंट रहा है, और जो भी है आज वो अपनी मेहनत और सच्ची लगन से आज इस मुकाम तक पहुंचा है। उसके पीछे उसकी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। काफ़ी फैमिलीज़ अलाउ नहीं करते, मुस्लिम फैमिली में भी कुछ लोग डांसिंग को अलाउ नहीं करते, बट इसकी फैमिली ने इसको बहुत सपोर्ट किया है। आज जो कुछ भी है उसके मम्मी पापा एंड उसके जितने भी लोग हैं उनके वजह से ये यहाँ तक है। थैंक यू सर। We would now like to give Faisal a little. Okay. मैं कहना चाहता हूँ कि सर का हाथ था मेरे पीछे, लेकिन सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि मम्मी पापा का हाथ है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग डांस नहीं करते, लेकिन डांस ज़रूरी नहीं कि सब लोग ना करें। मुस्लिम लोग ना करें, ये लोग ना करें, वो लोग ना करें। हर एक बच्चे में, छोटे से लेके बड़े बच्चों में एक आर्ट छिपा होता है अंदर, उसका इंटरेस्ट जिसमें होता है। 3 इडियट्स देखी होगी आप लोगों ने। तो मुझ में डांस और कराटे था। मम्मी कहते थे कि डांस, पापा कहते थे कराटे। मैंने कहा कराटे में भी टांग वांग टूट जाएगी, तो वो देखता था अजय देवगन की फिल्म में कि वो टांग ऐसे खींचते थे पूरा स्प्लिट करने के लिए। तो मैंने फाइनली डांस ज्वाइन किया और मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, और फीस में भी सर ने बहुत हेल्प की मेरी, और टाइम लिमिट से ज़्यादा मुझे डांस सिखाया। 2 घंटे होते थे, मुझे 4-6 घंटे सिखाते थे, और उनकी बदौलत फिर मैं DID के ऑडिशन में गया और फिर यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो मेरे मम्मी पापा का भी बहुत हाथ है। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू सर। We would now like to give Faisal and his family a small token of appreciation from the book team. We would request you to come. Now we would request the author to read a passage. मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। When you love someone a lot and someone sees him through your eyes, then stars should appear as a rising sun. ये हनी ड्रिफ्ट और क्या? Masterpiece, caramel coated, सब बुला Smile. We have a small group, we call it Ladies Dabba. I have not met these people, but we all have bonded on the same thing, that is we call Faisal.
सो हम लोग गुड नाइट भी कैसे होते हैं, फैजल रात्रि. We don't say good night, we say Fazal morning or we say Fazal Ratri. So yes, he's that famous. Now your turn to read. It was बारे पढ़ी नहीं एक तरह. इन्होंने अभी शॉर्ट में स्टोरी बता दी है, लेकिन फिर भी मुझे फर्स्ट पेज अच्छा लगा. आगे की स्टोरी मैंने की है तो मुझे वर्ड ऑफ प्रीवियस मुझे पता ही होगा कि क्या हुआ है, लेकिन फर्स्ट पेज पे इन्होंने लिखा है फैन फॉर द फर्स्ट टाइम. I waited for 40 long years to become a fan of someone. I simply nodded my head at my teenager friends when they ruled over a film persona, but I could not find a single Hollywood, Bollywood or Tollywood or Anywood personality for that matter to admire. And then in this year, I fell for a teenager boy. It is a wonderful feeling to be a fan of someone, and if that someone happens to be a raw teenager who personifies historical characters and carries the whole telly show on his slender shoulders, it is an amazing experience. Or I realized what a boring and tedious life I have led until now, not been a fan of someone. Truly now I can understand why girls back then fought for the heroes they liked, or why they wanted to collect their photographs and hoard, download and store as many pictures as I want in my device called mobile. My screensavers are only and only of this character that I have so much fallen in love with. This amazing teenage youth is none other than me, Fazal Khan, who performs the role of Kuwar Pratap, the young warrior who has a special place in Indian history, the lovely youth in what legends are made up of. ये फर्स्ट पेज ही मुझे बहुत भा गया, क्योंकि इन्होंने इतने से इसमें बता दिया है कि किस रीज़न की वजह से इन्होंने बुक लिखी है. जब ये इनकी एज 40 भी है, लेकिन कभी भी ये किसी के फ़ैन नहीं बनी, तो पहला ही मैं हूँ, तो बहुत अच्छी बात है. ये कह रही है कि जब इनके फ्रेंड्स किसी के अपने हीरोज़ के, अपने स्टार के फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके रखते थे, तो ये उन्हें कहती थी कि क्या टाइम पास कर रहे हो. बट अभी 40 इयर्स के बाद आप किसी को इतना बड़ा टाइम पास नहीं है, पता नहीं, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. ये फर्स्ट पेज मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने 10 ही पेज पढ़े. And now a photo of Sushma Ane with फैजल, क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर लोग बुक लिख रहे हैं और अब इतनी पब्लिसिटी आपकी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? लोग तो नहीं कहना चाहूँगा, सोनल पर्दीवाला जी ने बुक लिखी है, तो इन्होंने बुक लिखी है, ब्लॉग पोस्ट से ये बुक बनी है. इनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो इन्होंने आज बताया मुझे. बहुत ही शायद खुशनसीब हूँ मैं कि मुझ पर बुक लिखी जा रही है. एक फैमिली के इनकी एक बड़ी फैमिली है, मतलब बड़ी नहीं, एक छोटी सी फैमिली, 2 बच्चे हैं, एक पति है, एक ही पति हो गया. बुक लिखी है मेरे लिए टाइम निकाल के. नॉर्मली ऐसे आंटी नहीं, एसपी इन्हें मैं प्यार से एसपी बोलता हूँ, क्योंकि सोनल पर्दीवाला एसपी, तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो फाइन इन्होंने बुक बनाई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आपको नहीं लगता कि फैजल की जो बुक लिखी गई है, आपने इतनी जल्दी अभी तो बहुत सारी कुछ आई है फैजल को करनी है, तो वो सारी चीज़ें कैसे मिल नहीं, दिस बुक इज़ ऑल अबाउट, ये जो था ना, ये एक्चुअली बुक बना है. इसके पहले ये ब्लॉग्स थे, तो जब ये सीरियल आती थी तो हम क्या करते थे, 2 हफ्तों के सीरियल जमा जो होते थे एपिसोड्स, उनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन लिखती थी. ठीक है, तो वो ये ब्लॉग्स जो थे वो काफ़ी फेमस हो गए थे उनके महाराणा प्रताप फ़ैन के फैन पेजेस पे, फैज़ल खान के फ़ैन पेजेस पे. तो बुक लिखने का एज सच विचार इनिशियली नहीं था. आप अगर पढ़ेंगे बुक को तो वो अगस्त जून से शुरू हुआ, अगस्त सितंबर आगे भी लिखा था, तो डेट वाइज आपको पता भी चलेगा कि अच्छा ये अभी ऐसे मूव हो रहा है. तो एज सच ये सिर्फ उसने जो मुझे इम्प्रेस किया उसकी एक्टिंग से, जो टीवी में उसने ये किरदार निभाया, तो जो मुझे कनेक्शन फील हुआ वही मैं ब्लॉग में लिखती गई.
और एट द एंड जब सारे ब्लॉग्स जमा हुए उनको हमने साथ में मिला के इसको हम फ़ैन फिक्शन कहते हैं, जो इंडिया में आज तक नहीं हुआ है, बट इट इज़ अ फ़ैन फिक्शन। सो वी आर लाइक इट इज़ अ नाइस थिंग। सो अब फैजल तक पहुंचाना है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि तू हर एक लिंक खोल के मेरे एक ब्लॉग पढ़, तो इसलिए हमने उसको बुक का रूप देके उसको बनाया है। और तब तक ऐसा था कि बहुत सारे फैंस जो थे वो मुझसे जुड़े हुए, तो दे वांटेड कि मुझे भी ये बुक पढ़ना है, अगर तुमने बनाया है तो अभी तुम उसको ये करो, इसलिए इट इज़ देयर। सदर टर्निंग पॉइंट क्या था आपके करियर का, महाराणा प्रताप या DID, क्या कहना? देखिए मैं तो दोनों चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी टर्निंग पॉइंट मीन्स अब मैं और आगे बढ़ना है मुझे। तो DID से भी बहुत नाम मिला है माशाल्लाह, उसमें जो परफॉर्मेंस तांडव एक्ट किया था मैंने, उसके बेस पे मुझे महाराणा प्रताप में लिया गया, क्योंकि तांडव एक्ट में थोड़ा एग्रेशन था मेरा, स्टंट्स किए थे, उसके बेस पे लिया। तो अभी टर्निंग पॉइंट अब तक आया नहीं है मेरा। मैं चाहता हूँ कि देखिए सबकी इच्छा होती है कि टीवी पे दिखे, मेरी इच्छा भी है कि मैं बड़े पर्दे पर आऊँ। अभी पता नहीं कौन है आपका इंस्पिरेशन बड़े पर्दे पे? इंस्पिरेशन मैं सभी से सभी में एक कोई नाम दीजिए। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। एक नाम। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन के डांस फॉर्म को लेकर आप उनको कंसीडर करते हैं? उनके पास सब कुछ है यार, हाइट, लुक, पर्सनालिटी, बॉडी, डांस, गाने का, वो सिंगर भी है, गाना भी गा चुके। एक्टिंग शाहरुख से भी ले एक्टिंग शाहरुख खान जी से भी ले लूँगा, क्योंकि बहुत ही क्यूट एक्टिंग करते हैं वो। बुक लिखी गई है, यहाँ भी कई सारे फैंस से आपने बात की, क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह से फैन अभी आपने किसी फैन ने आपसे कहा कि हम घूमने चलेंगे आपके साथ में, तो इस तरह की रिएक्शन आते थे, क्या कुछ फीलिंग होती है? बहुत अच्छा लगता है। पहले से एक सपना था कि मतलब मेरे साथ लोग फ़ोटो खींचे, मेरे साथ लोग मेरे से साइन ऑटोग्राफ है, तो अब वो सपना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सच हो रहा है माशाल्लाह, आगे भी होता रहे, उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना टाइम निकाल के इतना रिस्पेक्ट देते, इतनी इज़्ज़त देते। सोनल जी ने तो बुक लिख दी, सबसे बड़ा काम कर दिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा कोई मेरे लिए कुछ करता है। जब और भी कुछ ऊंचाइयाँ छुएंगे, एक्टर बनेंगे, पॉपुलर और होंगे, तो हम ऐसा माने कि आप ये पार्ट 2 लिखेंगे इनके लिए? ऐसा है? जब भी फैजल कुछ भी करता रहेगा, आई हैव प्रॉमिस्ड हिम, मैं उस पर लिखती रहूँगी। ओके, इन जनरल एज सच पॉजिटिव जो भी होता है, आई अभी दम लगा के हईशा अच्छा लगा तो मैंने उसके ऊपर भी ब्लॉग लिख दिया है, तो आयुष्मान खुराना ने पर्सनली ट्वीट किया है, तो जब भी कुछ अच्छा इंस्पायर कर देता है तो लिखती हूँ। तो फैजल के ऊपर तो जब भी कुछ भी आएगा, आई हैव प्रॉमिस्ड, मैं लिखती रहूँगी। आयुष्मान पे लिखा था दम लगा के हईशा मूवी जो था ना, उसके ऊपर अभी उन्होंने ट्वीट किया है। हवाई दादा के ऊपर? नहीं जी, जो मुझे इंस्पायर करता है मैं तो सिर्फ उतना ही लिख देती हूँ।